Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for this examination. I am posting videos every single day so as to make you people study continuously and consistently. I hope you all are making notes out of it and you are marking all the important topics whatever I am providing through my videos. So my only request is to don't forget to subscribe the channel and do share it because every time even a single subscriber makes me happy and it motivates me to make like very much fruitful content for all of you people. So thank you so much for all of your support and do watch whatever I am providing through my videos. So in the previous video, like yesterday's video, I have provided research methodology part 1 in which I have provided questions, and also I have provided one descriptive video consisting of the different kind of research designs. So all these questions are related to that particular descriptive video. So this is part 2 of research methodology. So I am starting from question number 11. So one key tip is try to, like, if you don't know the answer, try to calculate it, try to understand it through the wordings. Like, there are so many questions in the question paper, more than 100 questions, let's say. So you, after studying 100 books, then also you will not be able to solve all the 100 questions of the question paper, because you have to use your common sense in some of the questions. I will let you know how you can do that. So see, first question is related to the biasness. What type of biasness it is asked? So see, which bias occurs when participants do not accurately remember past exposures? Now, from this question, one point is there that if the participant in a study, suppose if you are conducting any clinical trial or let's say any kind of study, and the participant is not remembering his past history, his past exposure, so what kind of biasness will come in your study? Selection bias, recall bias, observer bias, lead time bias. सीधे शब्दों में ये पूछा गया, सपोज आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं विजिट के लिए. If you are explaining one of your issues, let's say if you are having a back pain, so your physician will ask you the history. कब से है, क्या कुछ हैवी लिफ्ट किया था, क्या पॉस्चर, क्या आपका रूटीन लाइफस्टाइल कैसा है, सिडेंट्री है, पुअर पॉस्चर है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर पूछेगा. क्या कभी कोई इंजरी आई थी, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी आस्क्ड बाय अ फिजिशियन. तो आप क्या बोलते हो, कब से है पूछता है तो ये इस वीक से है, 2-3 दिन से है. अगर वो बहुत लंबा भी होता है तो हमें एग्जैक्टली याद नहीं होता है. और कोई मेडिकेशन लिया है या नहीं, किसी को कंसल्ट किया है या नहीं, कोई एक्सरसाइज किया है या नहीं. सो अगर हमें पास्ट एक्सपोजर नहीं पता है तो क्या सिलेक्शन बायसनेस होगा? नो, रिकॉल बायस होगा. हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. ऑब्जर्वर बायस नो, लेड टाइम बायस नो. सो रिकॉल बायस क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक एरर इन रिसर्च. कब होता है? जब पार्टिसिपेंट डू नॉट एक्यूरेटली रिमेंबर पास्ट इवेंट्स. यानी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक्यूरेसी से पास्ट इवेंट्स, पास्ट हिस्ट्री याद नहीं होता है. एंड दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन इन केस ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुरानी स्टडीज, जो पीछे जाके स्टडीज किया जाता है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें याद नहीं हो पाने से, इसलिए ये कॉमन किस में है? केस कंट्रोल स्टडीज और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज पे. तो आई थिंक ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गया होगा. लॉस टू फॉलो अप इन कोहॉर्ट स्टडीज में लीड टू, यानी अगर फॉलो अप नहीं करते हैं सो व्हाट विल हैपन. सबसे पहले तो मैंने कल बताया था कि अगर आप नहीं रिसर्च डिज़ाइन को ठीक से समझ पा रहे हैं, कितने टाइप के आपके रिसर्च डिज़ाइंस हैं, अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, देन आपको, मैंने कल एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो प्रोवाइड किया था, उस पर मैंने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल समझाया है. सो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए
Loss to follow up in cohort studies may lead to random error, selection bias, confounding, measurement bias. So it will be leading to a selection bias. ठीक है, यानी कोहर्ट स्टडी में हम क्या देखते हैं, हम दो ग्रुप्स देखते हैं कि किसी भी एक फैक्टर पे डिपेंडेंट है एक ग्रुप और एक ग्रुप डिपेंडेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप स्मोकिंग करता है, एक ग्रुप नहीं करता है. सो क्या होगा उसमें, कौन सा बायसनेस आएगा अगर हम फॉलो अप नहीं ले रहे हैं. लॉस टू फॉलो अप, इसको क्या बोलते हैं, लॉस टू फॉलो अप, LTFU, लॉस टू फॉलो अप. इस टाइप के बायसनेस ये कब होता है, व्हेन पार्टिसिपेंट लीविंग अ स्टडी डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज हु रिमेन अंडरमाइनिंग द स्टडी वैलिडिटी. यानी कि मान लो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं एक स्टडी में, ठीक है, तो अब उनमें से 3 उस स्टडी में रहते हैं और 3 इसी में इन है और एक आउट हो गया है किसी भी रीज़न से. ठीक है, तो 3 में जो भी हमें देखने को मिल रहा है, फाइंडिंग्स जो हमारी आ रही हैं, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंटली डिफरेंस आएगा. यानी एक जो चला गया अगर वो रहता तो हम कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपना डेटा दे पाते. तो लॉस टू फॉलो अप, LTFU. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एट्रीशन बायस, ATTRITION, एट्रीशन बायस भी इसे बोलते हैं. दिस अकर्स व्हेन पार्टिसिपेंट leaves a study differ significantly from those who remain undermining the study's validity. यानी कि इस एक के निकलने से ज़्यादा इम्पैक्ट बनेगा बजाय इस 3. मेजॉरिटी तो रह रही है लेकिन उनमें से अगर एक भी निकल गया है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कौन सा बायसनेस होगा, एट्रीशन बायस. सो ये एक सिलेक्शन बायस है जो कि बहुत ही कॉमन है. तो इफ़ ड्रॉप आउट्स डिफर सिस्टमैटिकली फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, सो अगर 20%, मोर देन 20% भी पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट हो जाते हैं, सो क्या होगा, जो आउटकम है वो इनएक्यूरेट कंक्लूजन देगा. ठीक है, अब इससे एक और क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से मैं कोशिश करती हूँ कि मल्टीपल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ. तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा दिस LTFU का. LTFU क्या है, लॉस टू फॉलो अप, लॉस टू फॉलो अप, लिखते जाओ. तो लॉस टू फॉलो अप का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा बताओ, इनएक्यूरेट कंक्लूजन. देखो, मैं रिसर्च का एक की टिप बता देती हूँ. बीइंग इन रिसर्च फॉर सो लॉन्ग, तो की रिसर्च ये कहता है जितना ज़्यादा आपका n बड़ा होगा ना, n इज़ व्हाट, सैम्पल साइज, जितना ज़्यादा आप n लेके चलेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं. सपोज इफ़ यू आर टेस्टिंग अ ड्रग दैट वेदर इट इज़ एफिशिएंट और नॉट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़. सो अगर आप 100 का टेस्टिंग करने के बाद में कंक्लूजन देते हैं और एक 1000 में, तो ज़्यादा जनरलाइज्ड और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप कब बोल पाएंगे, इफ़ यू हैव ट्रायल योर ड्रग ऑन ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, लाइक ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. सो जितना n बड़ा होगा उतना आपका जो रिजल्ट है वो कॉन्फिडेंट होगा. क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये आई होप कि समझ आ गया होगा और इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने और भी कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच error occurs due to chance variation in sampling. Chance variation in sampling. So ये जितने भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, all these things are very important. Chance variation, तो ये किस टाइप का हो सकता है, systematic error, random error, measurement bias और selection bias. So chance error in sampling is also known as simply sampling एरर. यानी सैम्पलिंग एरर है चांस वेरिएशन, मतलब ये चांस का मतलब क्या निकल के आ रहा है, प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी एरर है मतलब कि सैम्पलिंग एरर है. सो इट इज द नेचुरल डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर. सो दिस इज occurring because a sample rather than the entire population is studied. यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो सिंपल से मैं समझाती हूँ, पूरे पॉपुलेशन में, दिस इज पॉपुलेशन, ठीक है, ये पूरा पॉपुलेशन है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है. सो यू कांट स्टडी द होल पॉपुलेशन, यू कैन स्टडी द पार्ट ऑफ इट.
यानी इसका अगर आप एक छोटा सा पार्ट स्टडी करोगे तो दिस इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थ्रू कैपिटल एन। एंड सैंपल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थ्रू स्मॉल एन। सो ऑलवेज you can study the sample and not the whole population, and based on the outcome of your sample, whatever study you are conducting on your sample size, be it 100, 10,000, whatever be the sample size, on the basis of your sampling you conclude something that is generalized to a population, because we can't study the whole population. लाखों में study कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक छोटा सा sample size लेके हम study कर सकते हैं, right? सो ये जो एरर है, यानी कि सैम्पलिंग के टाइम पे कोई एरर आ रहा है, मतलब सैम्पलिंग एरर। जैसे अगर मैं एक बैग दूं जिसमें अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, तो आप अगर किसी भी एक बॉल को पिक कर रहे हो, जैसे इसमें कलरफुल बॉल हैं, बिना देखे आफ्टर क्लोजिंग योर आईज यू आर पिकिंग अप अ बॉल रेंडमली, देन अगर रेड है तो रेड का प्रोबेबिलिटी 1 तो हो गई आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल, लेट्स से n है टोटल नंबर ऑफ बॉल। वहीं अगर आप जानबूझ के देख के रेड या अपना फेवरेट कलर ही पिक कर रहे हो, तो ये तो बायसनेस आ गया, रैंडम तो हुआ नहीं। सो कभी कभी क्या होता है, हमारे वेरिएशन जो होता है, हम जब सैम्पल में पढ़ते हैं वो एक्चुअल में पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चूँकि हमने सैम्पलिंग किया है। देयर माइट बी सम एरर वाइल सैम्पलिंग। सो चांस वेरिएशन जब सैम्पलिंग में आता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द रैंडम एरर। ठीक है, नेचुरल एरर होता है, रैंडम एरर होता है। सो हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग सैम्पल साइज। यहाँ मैंने क्या बताया जस्ट 12th क्वेश्चन में, इसीलिए बोल रही कोहेरेंस में पढ़ते जाओ, जैसा मैं जो बता रही हूँ उसको पढ़ते जाओ बस। जितना बड़ा सैम्पल साइज करोगे एरर उतना कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, misclassification of exposure due to faulty instruments leads to what? Measurement bias, selection bias, confounding, recall bias. So misclassification of exposure due to faulty instrument. Suppose your instrument is not working accurately, then what kind of error it is? It is an instrumental error. And instrumental error क्यों आ रहा है? Because आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, उसमें मान लो 0 एरर आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कम हो गया है, सो इट इज़ अ मेजरमेंट बायस। ठीक है, ए सिंपल सा है। यानी आज जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ एरर एंड सैम्पलिंग रिलेटेड है, जो कि CR कोठारी में आपको मिल जाएगा बहुत ईजी लैंग्वेज में। आई हैव प्रोवाइडेड इट इन माई टेलीग्राम, डू चेक इट आउट। Blinding in clinical trial helps to reduce what? Random error, selection bias, observer bias, confounding. So blinding in clinical trial is what? क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। जैसे अगर मान लो सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगी, बिकॉज मैं हमेशा जब भी मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि सिंपल लैंग्वेजेस में और डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल में मैं कोरिलेट कर सकूँ। सो इसको कैसे समझेंगे? ब्लाइंडिंग इन क्लिनिकल ट्रायल। सपोज यू आर अ कैप्टन ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम। ठीक है, अगर आप एक कैप्टन हो, क्लास के ही कैप्टन हो, ठीक है, आपको फुटबॉल के लिए 2 टीम सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो 2 कैप्टन्स हैं हमारे, एक है ए, एक है बी, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर मैं कोई क्राइटेरिया ना दूं, मैं ये ना कहूँ कि रेंडमली आप ऑड इवन करके ले लो, या अगर मैं कोई भी क्राइटेरिया नहीं दूं आपको चूज करने का, सो ए और बी दोनों के दोनों चाहेंगे कि उनके ग्रुप में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आए ताकि ए टीम लीड करे, बी टीम लीड करे। तो ये दोनों को अगर इनके मन से चूज करने का फ्रीडम दिया जाए, सो दे विल पिक एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, यानी बायस्ड होके चूज करेंगे। अगर ए को पता है कि ये वाला प्लेयर अच्छा है तो उसको ले लेगा, अगर बी को पता है कि ये वाला अच्छा नहीं खेलता है, ये वाला अच्छा खेलता है, तो ये इसको ले लेगा। ठीक है, तो ब्लाइंडिंग हम क्यों करते हैं? ब्लाइंडिंग जिसे हम कहते हैं मास्किंग। ठीक है, इट इज अ टेक्निक वेयर स्पेसिफिक पार्टीज और पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टिगेटर और लेट्स से assessors आर केप्ट अनअवेयर ऑफ विच ट्रीटमेंट अ पार्टिसिपेंट इज रिसीविंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम ऑब्जर्वर बायसनेस को रिमूव करने के लिए ब्लाइंडिंग करते हैं, मास्किंग करते हैं। सो इट विल प्रिवेंट इन्फ्लुएंस ऑफ रिसर्चर एक्सपेक्टेशंस। ये है इसका रीज़न। सो इसमें क्या होता है,
यहाँ पे बायसनेस रिमूव करने के लिए हम सिंगल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी, ट्रिपल ब्लाइंड स्टडीज कंडक्ट करते हैं। सिंगल ब्लाइंड में सिर्फ पार्टिसिपेंट अनअवेयर होता है अपने ग्रुप असाइनमेंट्स का। डबल ब्लाइंड में क्या होता है, पार्टिसिपेंट एंड रिसर्चर्स दोनों ही क्या होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए अनअवेयर होते हैं। सो इस तरह से ये क्यों किया जाता है, बायसनेस को रिमूव करने के लिए। An ecological study analyzes data at individual population molecular clinical. So ecology में हम हमेशा population level में study करते हैं। A study following exposed and unexposed individual forward in time is case control, cohort, cross sectional, ecological. सो अ स्टडी फॉलोइंग, जैसे मैंने कल बताया था, अच्छे से याद करो कि दो ग्रुप हैं, एक एक्सपोज्ड है एक अनएक्सपोज्ड है, और यहाँ पे दिया है फॉरवर्ड इन टाइम। सो दैट इज अ कोहोर्ट स्टडी। और एक हमने कल और एक पढ़ा था प्रीवैलेंस स्टडी, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताते हैं, उस टाइम का बताता है। ये सारी चीज़ें अच्छे से लिख के रख लो। Which design is most time consuming and expensive? Cross sectional study, case control study, cohort study, ecological study. So time consuming कौन सा है, cohort study, because it requires long follow up, इसीलिए ये बहुत टाइम तक चलेगा और इसलिए एक्सपेंसिव भी होगा। 19 question, a confounder is a variable that causes measurement error, is associated with exposure and outcome, randomly affect sampling, only affect outcome. So confounder is a variable that is associated with exposure and outcome. So कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। So ये क्या है, that is associated with the exposure and both outcome. So जैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल लंग कैंसर स्टडी, तो इस तरह के वेरिएबल जो हैं वो दोनों को ही रिलेट करते हैं, यानी एक्सपोजर को भी और आउटकम को भी। Which of the following reduces systematic error in epidemiological studies? Increasing sample size, randomization and blinding, repeated measurements and large population. So which of the following reduces systematic error? Systematic errors को कौन reduce कर सकता है? रेंडमाइजेशन कर दो ताकि बायसनेस ना हो, और ब्लाइंडिंग कर दो ताकि ऑब्जर्वर बायस ना आए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल कंट्रोल द बायसनेस एंड कंफाउंडिंग। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो आई होप आपको बहुत सारे की पॉइंट्स मिले होंगे इस वीडियो से। सो डू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको PYQs प्रोवाइड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।